नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सबसे पहले सभी देशवासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे ने आज फिर से नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद रियाज खान ने कांग्रेस उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी आज कर्नाटक के मांड्या और कोलार में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव 2024 डीके शिव कुमार ने यह कहकर सिद्धरामैया पर निशाना साधा कि मैसूर में वोकलिंगा सुरक्षित नहीं है, एचडी कुमारस्वामी का कहना। उम्मीद और विश्वास के बाद अब गारंटी लेकर आया हूं, असम की रैली में बोले पीएम मोदी। क्या तमिलनाडु में अन्नामलई को रोक पाएगी डीएमके और एआईडीएमके? दोनों दल कर रहे कड़ी मेहनत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे ने बुधवार को एक और नामांकन पत्र दाखिल किया है। सागर खंडरे ने रिटर्निंग ऑफिसर गोविंद रेड्डी को पिता, पर्यावरण मंत्री और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे, नगरपालिका प्रशासन मंत्री रहीम खान, पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल, अशोक खेनी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र सौंपा है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सागर खंडरे और मंत्री सहित नेताओं ने मीडिया से बात की और बाद में रोड शो में भाग लिया। हार्दिक ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಏನು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆ, ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಯುವಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಅವರು ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಏನೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿದೆ, ಜನರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ಉತ್ಸಾಹ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಸಾಧನೆ ಇದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಾವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಂತರ ನಾನೇನು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, 100% 100% ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ राजशेखर पाटिल और ईश्वर खंडरे, अरविंद अली, हमारे खेनी, अशोक खेनी, उनके साथ अभी डीसी ऑफिस में नॉमिनेशन सागर खंडरे का करके आए हैं। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, रामनवमी है। इसके लिए मैं सभी बीदर की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि सागर खंडरे जी को सपोर्ट करिए, मदद करिए और इस बार अच्छी लीड से जिताइए। नावेल्लರೂ ಸೇರಿ ईश्वर खंडरे ಖೇಣಿಯವರು, ತಾಳಂಪಳ್ಳಿಯವರು, ಅರವಿಂದರವರು ಸೇರಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ಇಡೀ 8 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಗಣೇಶವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಮೇ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿಯವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ. ನಾಯಕರ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಬಿ-ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ರ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಗಣೇಶ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂಬುದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಒಂದು ಹೊಸ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು BJP ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಾರಾಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಹೋಗಿದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು
ಜನ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಂತಂದರೆ 99% ಯಾರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅನುದಾನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಾವು ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे के नामांकन पत्र दाखिल करने के आज दूसरे दिन बुधवार को शहर के अक्का महादेवी कॉलेज में नेताओं का ताना बाना लगा रहा। इसी बीच कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद यास खान और एनएसयूआई के राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान अक्का महादेवी कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में नेताओं का स्वागत किया गया। इस मौके पर नगरसभा प्रशासन मंत्री रहीम खान, पूर्व विधायक अशोक खेड़ी, राजशेखर पाटिल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। डॉक्टर मोहम्मद यास खान ने मंत्री ईश्वर खंडरे से मुलाकात की और साथ ही उम्मीदवार सागर खंडरे से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। कॉलेज परिसर में जमा हुए नेता आपस में चर्चा आदि किया और वहां से नामांकन पत्र दाखिल करने रोड शो और गणेश मैदान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रस्थान किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में रामनवमी मनाई गई। शहर के बीवीबी भूमरेड्डी कॉलेज रोड पर स्थित राम चौक पर आज पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ रामनवमी मनाई गई। विद्यानगर विकास संघ के अध्यक्ष श्याम हलामंदा ने भगवान राम के चित्र पर पूजा अर्चना की। इसके साथ ही भजन कीर्तन भी किया गया। इससे पहले युवाओं ने माइलूर रोड पर हनुमान चौक से राम चौक तक बाइक रैली निकालकर लोगों का ध्यान खींचा। पूरी रैली के दौरान जय श्री राम के नारे लगाते रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को कर्नाटक के मांड्या और कोलार में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु उत्तर के कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद वह शाम करीब 4 बजे कोलार में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कि मैसूर में वोकलिंगा सुरक्षित नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि ऐसा लगता है कि शिव कुमार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को निशाना बना रहे हैं। जेडीएस अध्यक्ष मांड्या लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हैं। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा यह कहकर कि वोकलिंगाओं को मैसूर में सुरक्षा नहीं है। शिव कुमार ने मान लिया है कि सिद्धरामैया द्वारा वोकलिंगाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। एक मजबूत अहिंदा कन्नड़ में अल्पसंख्यकों, पिछड़े समुदायों और दलितों के लिए संक्षिप्त नाम मैसूर के नेता, क्या इसका मतलब है यह है कि सिद्धरामैया ने वोकलिंगाओं के साथ अन्याय किया है। लोग इसे समझते हैं, इसलिए लगभग 90% वोकलिंगा भाजपा जेडीएस गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि सिद्धरामैया को किसी भी समुदाय में किसी नेता का उदय बर्दाश्त नहीं है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि जनता दल सेक्युलर के साथ पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। दावणगेरे में भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वरा के लिए प्रचार करते समय पत्रकारों से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि भाजपा आगामी सभी चुनाव जेडीएस के साथ मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी और वरिष्ठ जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा के बीच चर्चा हुई। येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेखित गारंटी आगामी चुनाव में देश में चल रही नरेंद्र मोदी लहर के सामने पार्टी की मदद नहीं करेगी। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहां कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, वहीं उन्होंने कहा कि उम्मीद है और विश्वास के बाद वे गारंटी लेकर नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग कहते हैं कि 4 जून 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी, उसे भाजपा ने संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। कांग्रेस ने अलगाववादों को खाद पानी दिया है। मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया है। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए, जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी ने 10 साल में कर दिखाया है। क्योंकि मेरे लिए आपका सपना ही मेरा संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा 2014 में मोदी आपके लिए एक उम्मीद लेकर आया था, 2019 में मोदी जब आया एक विश्वास लेकर आया और 2024 में जब मोदी असम की धरती पर आया है तब मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम के दिग्गज मंत्री पलानीवेल थियागराजन को जब मई 2023 में वित्त मंत्रालय से हटाकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भेजा गया, तब माना जा रहा था कि यह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई द्वारा सार्वजनिक किए गए ऑडियो क्लिप का ही नतीजा है। अन्नामलई ने इसका पूरा लाभ उठाया और आज भी वह सत्तारूढ़ द्रमुक एवं विपक्षी अन्ना द्रमुक को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोयम्बटूर से भाजपा उम्मीदवार अन्ना द्रमुक को लगातार चुनौती दे रहे हैं तथा कच्चातीवू द्वीप विवाद के बाद कांग्रेस पार्टी भी उनके निशाने पर आ गई है। अन्ना द्रमुक नेताओं ने अन्नामलई पर आरोप लगाया है कि उन्होंने द्रविड़ आदर्श माने जाने वाले सीएन अन्नादुराई और दिवंगत पार्टी सुप्रीमो जे जयललिता के बारे में भला बुरा कहा था और यही वजह है कि पार्टी ने पिछले साल भाजपा से नाता तोड़ दिया था। तमिलनाडु की राजनीति में चाहे ऑडियो क्लिप प्रकरण हो या अन्ना द्रमुक का भाजपा से नाता तोड़ना, अन्नामलई किसी न किसी तरह से चर्चा का केंद्र बने रहे। तमिलनाडु की कोयम्बटूर सीट के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। थियागराजन ने भाजपा के इस आरोप को खारिज कर दिया था कि ऑडियो क्लिप में उनकी आवाज है। राजन को दूसरे मंत्रालय में स्थानांतरित करने के लगभग 1 साल बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस संबंध में कहा कि यह कदम भाजपा के आरोपों पर नहीं बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में सुधार करने के लिए गया था। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना वेबसाइट आपका राम राज्य लॉन्च कर दिया है। इससे पहले आपने संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी खुशहाल कैंपेन लॉन्च किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद यह खत्म हो गया। फिर पार्टी ने दूसरे कैंपेन लॉन्च किया, जेल का जवाब वोट से। ये कैंपेन अब भी जारी है। इस अवसर पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बिजली मुफ्त दी जा सकती है। आजादी के बाद मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त पानी योजना और मुफ्त बस यात्रा योजना लागू करने वाली यह पहली सरकार थी। दिल्ली मुनाफे का बजट देने वाला एकमात्र राज्य है। हम राम राज्य की अपनी परिकल्पना को धरातल पर साकार करने के लिए कृत संकल्पित हैं। आपका राम राज्य कैंपेन लॉन्च करने के मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम को राम राज्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, 14 साल वनवास काटना पड़ा था। आज केजरीवाल जी भी अपने वचन पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो दिल्ली की जनता ने से वादा किया था उसको पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। जेल से भी वो हमें ऑर्डर देते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महाराष्ट्र के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से को धमकी भरा फोन आया है। उन्हें अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। एकनाथ खड़से ने मामले में पुलिस से शिकायत की। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले एकनाथ खड़से ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी को छोड़कर वापस भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया था। एकनाथ खड़से ने धमकी भरे कॉल के मामले में जलगांव जिले के मुक्ताई नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शिकायत में कहा कि फोन करने वाले ने खड़से को धमकी देते समय दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम लिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे खड़से को इससे पहले भी फोन पर धमकियां मिल चुकी हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विधान पार्षद एकनाथ खड़से ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह आने वाले 15 दिनों के भीतर अपने मूल संगठन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि एकनाथ खड़से साल 2020 में भाजपा को छोड़कर एनसीपी अविभाजित में शामिल हो गए थे। एक बार फिर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, फिर लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों के बाद से मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वह ईरान के हमलों का जवाब देगा। इसी बीच इजरायली सेना का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में किए गए हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों समेत 3 लड़ाकों की मौत हुई। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि हवाई हमलों में राडवान फोर्से की पश्चिमी क्षेत्र के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद हुसैन शाहोरी की मौत हुई। इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मोहम्मद हुसैन शाहोरी ने लेबनान के मध्य और पश्चिमी इलाकों से इजरायली क्षेत्रों की ओर रॉकेट और मिसाइल हमले की योजना बनाई थी और हमले भी किए। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह की रॉकेट और मिसाइल यूनिट का एक और कमांडर महमूद इब्राहिम फजलल्लाह भी हवाई हमले में मारा गया। ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों के बाद इजराइल ने भी पलटवार की बात कही है। इजराइल की तरफ से सैन्य कार्यवाही होगी या फिर अन्य विकल्प तलाशे जाएंगे, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने बड़े और कड़े कदम उठाने की बात कही है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वह ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और ईरान के रक्षा मंत्रालय का समर्थन करने वाली संस्थाओं पर भी आने वाले दिनों में नए प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 सहित सहयोगियों और भागीदारों के साथ समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाएगा। जैक ने अपील करते हुए कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और साझेदारों से भी ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की उम्मीद करता है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे ने आज फिर से नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद यास खान ने कांग्रेस उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी आज कर्नाटक के मांड्या और कोलार में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव 2024 डीके शिव कुमार ने यह कहकर सिद्धरामैया पर निशाना साधा कि मैसूर में वोकलिंगा सुरक्षित नहीं है, HD कुमारस्वामी का कहना। उम्मीद और विश्वास के बाद अब गारंटी लेकर आया हूं, असम की रैली में बोले पीएम मोदी। क्या तमिलनाडु में अन्नामलई को रोक पाएगी डीएमके और AIADMK, दोनों दल कर रहे कड़ी मेहनत। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।